آپ کو خان صاحب نے طلب کیا ہے، کچھ کنفیوژن ہے کیونکہ صبح بھی ہماری پی ٹی آئی رہنماؤں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے تئیں مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ نام بتا دیں کہ آپ کو کس کے ذریعے پیغام ملا، کیونکہ 5 دن سے خان صاحب کہتے تنہائی میں ہیں۔ نہیں، لیکن لاسٹ ٹائم جب یہ جی ایس ٹی اٹیک پہ جس دن جی ایس ٹی اٹیک کی کیس کی ہیئرنگ تھی، اسی دن انہوں نے پیغام دیا تھا۔ پیغام پیغمبر کون؟ یہ آپ کو پارٹی سے فارغ کرنے سے پہلے پیغمبر کا نام بتاؤں گا نا، یہ سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اچھا سر، فواد چودھری کے بارے میں کیا پارٹی نے کوئی فیصلہ لے لیا سنجیدہ کہ وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تو ہم خود پارٹی میں نہیں ہیں، میں کیا رائے دوں گا، سمجھ گئے نا وہ سوال۔ ہاں جی، مجھے نکالا کا آپ کو جواب دیا ہے پارٹی نے؟ جواب اتنا لمبا نہیں ہے جتنے آپ ہیں، لیکن کوئی دے نہیں رہا ہے سر، لیکن پارٹی مطلب انتشار کا شکار آپس میں ایک دوسرے سے کلیکٹڈ ہیں، کس طرح چل رہی ہے پارٹی میں انتشار جو ہے نا فتنہ گروپ کا ہے، وہ باز نہیں آ رہے۔ دیکھو یہ وقت ہے، ابھی خان صاحب نے کہا ہے نا کہ عید کے بعد ہم نے کمپین تحریک چلانی ہے، تو آپ لوگ دیکھیں نا ابھی ایک پیج پہ ہونا ہے، متحد ہونا ہے۔ یہ اتنی تلخیوں کے ہوتے ہوئے اور یہ جو حرکات و سکنات ہو رہی ہے، کیا اتحاد ہمارے بیچ آئے گا؟ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے کلیدی ذمہ داری ہے جو خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکیں۔ خان صاحب شٹ اپ کال دیں، یہ بکرنگ اس کی کانوں میں جو ہوتی ہے ان سب کو کہیں کہ بند کرو یہ بکواس، آ کے اور کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں کو گرانے میں لگے ہو۔ تو لہذا خان صاحب جب شٹ اپ کال دے گا ونس فار آل، یہ جب تک جو ہے شنوائی اس حوالے سے خان صاحب دیتے رہیں گے یہ تسلسل رہے گا۔ خان صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ سلسلہ نہ تھمنے والا ہے، بار بار جو ہیں یہ فتنہ اور فسادی جو ہیں ان کا یہی کام ہے، کام ٹکے کا نہیں کرتے ہیں، تکلیف ٹکے کا نہیں اٹھائیے، عہدوں کے پیچھے اور لوگوں کے گرانے کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، باقی بس یہی ایک کام ہے۔ اور یہ اچھا، شیر افضل مروت صاحب، کل آپ نے بیرسٹر گوہر صاحب سے یہاں پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک امرانہ ایک نظام چل رہا ہے، جمہوری طرز عمل کے ساتھ کوئی اختلاف کا طرز پارٹی سے نکالا جاتا ہے، تو ہم نے شدت کے ساتھ کہا کہ ایک شخص مشکل وقت میں ساتھ رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، لیکن اس کو نکالا جا رہا ہے، ایسا نکالا گیا، لیکن اس کی جانب سے سافٹ کارنر آپ کے لیے تھا کہ ممکن ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پارٹی میں دوبارہ جو ہے لیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا۔ دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں، گور صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میرے بہت ہی مخلص دوست ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن جتنے یہ سینئر لاٹ ہیں جو پی ٹی آئی کی شناخت ہے ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ ان چیزوں کا نوٹس لیں۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جی آپ میڈیا کو ایوائڈ کریں، کھل کے بتا دینا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خان کو جا کے کہیں کہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا میڈیا کو ایوائڈ کرے، خان کا فیصلہ ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بھائی آپ خود یہ کہیں کہ کیا پارٹی میں ایسا ہونا چاہیے؟ جس طریقے سے معاملات جو ہیں نبھائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے جو ہیں لوگ عہدوں پہ قبضے کر رہے ہیں، اور جب تک کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا، خان سے وفاداری کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی معاملات صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے خان کے لائن لسٹ کی کہ جا کے خان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہے۔ اگر اس ڈر سے کہ کوئی میڈیا پروپیگنڈا یا پروپیگنڈا جو مشینیں ہیں میرے پیچھے چل جائے گی، گالم گلوچ شروع ہو جائے گی، یا یہ گروپ جو ہے یہ ان کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، کیونکہ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، خان سے جس دن بھی ملاقات ہوتی ہے تو کان بٹھانے کے لیے کہ خبریں پہنچانے کے لیے ایک دو گماشتے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی اور وہ خان کے سامنے کسی کو علیحدگی میں بات کرنے ہی نہیں دیتے ہیں کہ کوئی کیا کہا، جو ہی خان کوئی علیحدہ ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک دو اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ 1.5 سال سے میں نے یہ ساری اسی طرح جو ہے کرتوت دیکھے ہیں۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے عمران ریاض پر جو الزامات لگائے تھے وہ تو ان کو ڈینائی کر رہے ہیں تمام تر الزامات، اور مجھ پہ کوئی الزام لگائے جوابی، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آیا جائیں۔ اب تو ہم الحمدللہ کشتیاں جلا چکے ہیں، جب تک کوئی مجھ پہ جوابی الزام نہیں لگائے گا
मैं खामोश हूँ। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी के अंदर ये क्यों तर्ज अमल अपनाया गया है कि केपी के जो रहनुमा है वो अली बिन गंडापुर हो या शेर अफजल मरवत हो, इनकी कारकर्दगी और इनके एक्टिविटीज पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, इनकी वफादारी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब की जो रहनुमा है जो खोसाकटा जलावतनी पंजाब के रहनुमाओं के लिए कितना मेरे पास है कि रेडार पे शेख वकास साहब के पीछे लोग लग गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनका मनसब खतरे में आ चुका है। अगला नंबर हो सकता है उनका। कुछ इल्जाम और किस लिए खतरा है? पाकिस्तान की सियासत में इल्जामात लगते रहे सहाफ़ियों की जानिब से कि सियासतदान चोर हैं, ये मफादात के साथ चलते हैं सहाफ़ियों के। तो इमरान रियाज के ऐसे क्या माइंड्स का देखा था जिस पे सवाल आपने भी उठाया और अली अमीन भी उस पर सवाल उठा रहे हैं? कि इमरान रियाज साहब जो हैं उसने किसी के इशारे पे मेरे खिलाफ विलाग किए, और विलाग में कोई शहादत नहीं है। एक आदमी को कोर्ट कर रहे, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये साफत नहीं है। और फिर उसने जो है दूसरा विलाग किया, फिर उनके और साथियों ने भी इसी तरह से मिलते जुलते विलाग किए। तो लिहाजा जिस शख्स को कोर्ट करके उन्होंने कहा उस शख्स ने मुझे भी कवायद दिए, तो मैंने जवाब दे दिया, और जो मैंने कहा है चैलेंज करके कहता हूँ कि मुझे इसी तरह उसी हजरत ने बताया। फिर इसके बाद दोबारा जो है ये जो मेरे निकाले जाने के पीछे ये कोई चीज़ अचानक नहीं हुई है, इसके लिए ग्राउंड तैयार की गई है, इसके लिए यूट्यूबर को इस्तेमाल किया गया। और इस तरह यही हजरत इमरान रियाज साहब से कोई पूछे ना, आज से 1 साल पहले वो मुझे अपोजिशन लीडर बना रहा था, और यही हजरात जो है मेरे तारीफ भी करते थे। तो अचानक ऐसे कौन सी जो है गुनाह कबीरा व सगीरा का मिल के मैंने इर्तिकाब किया कि इतना ही रांदा दरगाह हो गया कि अब मिलाके शुरू कर दिए। मैं इमरान रियाज साहब के हवाले से हतमी बात तब करूँगा जब वो एक दफ़ा फिर मुझ पे इल्ज़ामात लगा दें। तो इंशाअल्लाह मैं अब सहाफ़ी बनने का मैं ऐलान कर रहा हूँ, विलाग करूँगा जिस अंदाज में चबा चबा के वो बोलते हैं ना, इंशाअल्लाह अब ज़बान हमारी भी ज़रा थोड़ी सी जो है रफ्तार पकड़ गई। मरवत दूसरों को कहते हैं कि ये चोर हैं, फ्रॉड करते हैं, तो ठेके के लिए अली अमीन के साथ भी राब्ते किए जाते रहे उनकी तरफ से, और किस तरह के टेकों की तफासिल तब बताऊंगा जब मेरे टेकों की तफसील बता देगा कोई। शेर अफजल मरवत साहब बताइएगा, बैरिस्टर दोस्त साहब से हमने सवाल किया आपके वालिद से, उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई तक अब शेर अफजल मरवत साहब को खामोश रहना चाहिए, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, सियासत में जो है मैं खामोश रहूंगा, लेकिन मैं आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, मैंने खान की पार्टी पे तो कभी कोई इल्ज़ाम का सोचा ही नहीं है। लेकिन कोई अगर ये एक्सपेक्ट करे कि लोग मेरे खिलाफ विलागे भी करें, मीडिया पे गालियाँ भी दे, खान के कान भी भरे, पार्टी से भी निकलवाए और मैं खामोश बैठा रहूँ, ऐसी जो है ऐसे हम बने हुए नहीं है। मरवत साहब, आपने किसी दौर में सहाफत की है, लेकिन वो प्रिंट मीडिया का दौर था, अब थोड़ा सा फास्ट हो चुका है, मुश्किल नहीं हो गया? मेरा ख्याल नहीं है, मैं आर्टिकल लिखा करता था सहाफत की और एडिटोरियल लिखे हैं मैंने अंग्रेजी अखबारों के, और सहाफत पढ़ी है मैंने यूनिवर्सिटी में, ये चीजें इतना मेरा ताल्लुक रहा है। मरवत साहब ये बताएं कि आपको लगता है अली बिन गंडापुर साहब के साथ मुझे क्यों निकाला का टेक लगने वाला है? मेरा ख्याल है कुछ और लोग भी होंगे, इकट्ठे हम नारे लगाएंगे, हमें क्यों निकाला। अच्छा मरवत साहब, आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, तो सलमान अकरम राजा ने इसके हवाले से बयान दिया है कि मरवत साहब को सब पता है कि उन्हें क्यों निकाला, वो मासूमियत का मुजाहिरा कर रहे हैं, तो क्या रिप्लाई करेंगे? तो हम हैं ही नहीं, मुझे पता होता तो मेरी जबान पे किसी ने ताला डाला था तो मैं बता देता, इसलिए तो मैं उनकी भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो बताते ना। तो आपने कल एक नाम भी लिया कि एक शख्सियत है जिसका सलमान अकरम राजा तर्जमान है, ये 2 शख्स हैं जो इमरान खान साहब के कान भरते हैं मेरे खिलाफ, वो शख्सियत बता। सलमान अकरम राजा साहब ऐसे नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गलती कर गए, और एक चीज लिख ले, गलती कर गए या करवा गए? कर गए ना, किसी के लिए इस्तेमाल होना वो उसके स्टेचर के साथ जो है ममासलत नहीं रखता है। एक बात लिख लें, 2 से 3 महीनों के अंदर मैं यकीन से कहता हूँ कि उनके यही तरीका और तर्ज जो है उसको भी इस ऑफिस पे रहने नहीं देगा। ये वीडियो याद रखें, 3 माह बाद दिखाए मुझे। ठीक है सरदार साहब ने टाइम दियो, सरदारों का सरदार सुन लें, हमारा यार
जिगरी यार क्या माशाल्लाह सर ऐसा क्या है कि इधर यार तुम्हारे टकले पन कैसे समझते हैं कोई चैनल ओपन होगा? देखिए जी, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि वो पीटीआई लेट के करेगी और गवर्नमेंट खड़ेगी। तो अभी तो यही हो रहा है, वो लेटे हैं, वो खड़े हुए हैं। थोड़े दिन के बाद छोटी मोटी मुज़ाकरात का ड्रामा शुरू हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड ना थी, ना है, ना आगे होगी। ये बड़ी क्लैरिटी रखें। और हर आदमी यही बेच रहा है कि मैं बात करा देता हूँ। तो अब बातचीत का अभी तुम्हारा अलग है। ईद के बाद कब देख रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई को, किस हद तक देख रहे हैं? कितने अरसे बाद? 8-10 महीने तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। और फवाद चौधरी साहब, मरवत साहब भी आपने कहा वो मेरी पार्टी से हैं, फवाद चौधरी साहब इस वक्त किस पार्टी से हैं? देखिए, मेरी पार्टी से मेरा मतलब ये था, वो कल स्पिन हुई है बात, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरवत एक अच्छा आदमी है, क्राउड पुलर है, उससे दुश्मनी पीटीआई कर रही है। फवाद चौधरी जाना चाहता है पार्टी के अंदर और उसको जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक फॉर ब्लॉक आ रहा है, एक पुराने लोगों की शक्लों में वापस लोग आ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको जल्द नज़र आएंगी। तो पीटीआई एग्जिस्टिंग जो है, जो कॉम्प्रोमाइज़, जो लेटिव है, जो मुनाफिक है, जो चोर है, जो बेईमान है, जो ड्रामेबाज है, जो एक्टिंग करती है, उनके लिए मुश्किलात पीटीआई वर्सेस पीटीआई वर्सेस पीटीआई वर्सेस पीटीआई वर्सेस पीटीआई। और ये मैं आपको 1 साल पहले से कह रहा था। सर ईद के बाद एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है कि पीटीआई ईद के बाद एहतजाज करेगी। ये आज है 18 तारीख, लिख लीजिएगा अपने पास। ना एहतजाज होगा, ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना टी चौक होगा, ना कोई ड्रामेबाजी होगी। ट्रम्प कार्ड से प्ले कार्ड जैसे होते रहेंगे, आपके पास तस्वीरें खिंचाते रहेंगे। कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं, सब अच्छे बच्चे बन के चलेंगे, क्योंकि बाप का दम है तो आ जाए। पीटीआई की आदत इमरान खान से सिंसेयर है, पीटीआई की आदत इमरान खान साहब से कोई सिंसेयर है। सिंसेयर नहीं है। इमरान खान साहब को जेल में पहुँचाने में, यहाँ तक पहुँचाने में और मजीद जेल में रखने के लिए पीटीआई जद्दोजहद कर रही है। और इस गवर्नमेंट की जामिन जो है वो सिर्फ पीटीआई है। सर आपने कहा था कि मैं इमरान खान को बाहर निकलवाना चाहता हूँ उन जेल से, तो इस पर अभी भी आप अपने उस बयान पर कायम है? देखिए, मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो मेरे लीडर रह चुके हैं। उन्होंने मुझे जो सिखाया है मैं वही सियासत कर रहा हूँ, वो भूल गए, मुझे याद है। और अगर रात के 3 बजे भी अगर मैं उनको एक पानी का खतरा भी कर सकता हूँ, 3 बजे भी वो मुझे बुलाएंगे। मुझे ना उनकी पार्टी में जाना है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए। अगर उनको मुझसे कोई, अगर मैं किसी चीज़ की हैसियत रखता हूँ, कोई भी मामूली सी चीज़ के लिए, वो 3 बजे भी रात को बुलाएंगे तो मैं हाजिर हूँ। क्या फजल रहमान साहब अपोजिशन को कोई फेवर दे सकते हैं? देखिए, फजल रहमान साहब के साथ मेरे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ प्यार और एहतराम का रिश्ता है। वो अपनी तौर पे अपनी कोई तहरीक अपने सिलसिले में करें तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। इनके लिए वो तहरीक नहीं चलाई। और अगर ज़रूरत पड़ी और ऐसा कोई मौका आ गया तो मैं कभी मुफाद के लिए उनके पास गया नहीं, उनको बता के आया था। मैं उस दिन से उनके साथ खड़ा हूँ, अच्छे बुरे गर्म सर्द मौसम में उनके साथ खड़ा रहूँगा। और अगर कोई ज़रूरत पड़ी और मैं किसी वक्त गया तो मुझे उम्मीद है, मेरा गुमान है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा और मैं उनके घर किसी भी चीज़ के लिए जाऊँगा तो खाली हाथ।